ایک رات پھر مجھے وہی دورہ پڑا اور میرے ہاتھ پاؤں اینٹ گئے، دماغ بوجھل ہو گیا اور سینے میں جلن ہونے لگی اور آنکھیں ابلنے لگیں۔ گھر میں سب سو رہے تھے اور میں اپنے بستر پر موت و ریست کی کشمکش میں پڑا تھا اور کوئی میری مدد کے لیے بھی نہیں آیا، کیونکہ میری چیخ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی اور اس عالم میں بھی چھت پر حسب سابق کچھ شبیہ سی دکھائی دی۔ کچھ سائے گڑ مڑ ہوتے ہوئے نظر آئے اور میں نے خوف و دہشت سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا اور اس سے میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سادھو کے آنے کے بعد مجھے اپنی حالت کچھ بدلتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ بھی رات بھی اندھیرے میں میرے سر پر وارد ہو گیا تھا۔ جب میں کمر پردیپ کا کام تمام کر کے بھاگا ہوا آ رہا تھا اور ٹھوکر کھا کر گر گیا تھا، میں سختی سے ان ماورائی اور پر اسرار باتوں کی ترویج کرتا تھا، لیکن کچھے والا پنڈت، سادھو دیوراج اور کیچو بار بار یہ احساس دلاتے تھے کہ میں کوئی علیحدہ شخص ہوں۔ سادھو کی جادوگری پر اب شبہ کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ مجھ میں اس کی یہ غیر معمولی دلچسپی بے سبب نہیں تھی۔ گاڑیاں راجے پور کی صاف و شفاف سڑکوں پر دندناتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اور میں اپنی سوچوں میں گم تھا۔ ایک چیز سے خوف آتا تھا، پولیس سے، سو وہ مرحلہ بھی آ گیا۔ اب شرماتے جھجکنے اور نادم ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ گاڑیاں سرخ رنگ کی ایک شاہانہ عمارت میں داخل ہو گئیں۔ عمارت کا دبدبہ دیدنی تھا۔ ہم بکروں کو بے حفاظت تمام اتارا گیا۔ اعلیٰ افسران ایک دوسرے سے کچھ گفتگو کی۔ آئی جی صاحب کچھ غیر متعلق اور متفکر سے نظر آ رہے تھے۔ سنگین برادر ہمارے ارد گرد ستونوں کی طرح کھڑے ہو گئے اور ہمیں مختلف کمروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جس کمرے میں مجھے لے جایا گیا تھا وہاں پہلے سے اور لوگ بھی موجود تھے، چہرے و مہروں سے اچھے خاصے لگتے تھے۔ حالت البتہ سب کی خراب تھی، کوئی سہما ہوا، کوئی دبکا ہوا، کسی کی آنکھوں میں آنسو، کسی کا چہرہ پیلا پڑا ہوا، اور مجھے ان پر ترس آ گیا۔ ہمارے ہاتھوں کے نقش اور نشانات محفوظ کرنے کا کام سب سے پہلے ہوا، پھر پولیس کے فوٹوگرافروں نے دو بار ہمارے فوٹو کھینچے۔ یہ کام پھرتی سے ہو گئے۔ پھر پولیس کے کارندے کاغذات لے کر ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک پولیس والے نے کاغذ پھیلا کر نرم لہجے میں مجھ سے پوچھا، نام؟ موہن داس۔ پتا کا نام؟ مجھے بتانے میں تامل ہوا، اس لیے میں نے اپنے پتا کا نام رکھنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ پولیس والے میری طرف گھور کر دیکھا اور زور سے بولا، پتا کا نام؟ تلسی داس۔ میں نے گھبرا کر کہا۔ عمر؟ جی یہی کوئی 25-26 سال۔ اس نے سرتاپا میرا جائزہ لیا۔ لکھی بھی ہے یا نہیں؟ جی نہیں، میں نے مختصر جواب دیا۔ جائے پیدائش؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ سوچنے کی بات تھی کہ ہندوستان کے مختلف شہروں پر میری نظر گئی۔ میں نے جلدی سے کہا، غازی آباد۔ غازی آباد؟ وہ چونک کر بولا، کس محلے میں رہتے تھے؟ میں نے تیزی سے جواب دیا، بڑے مندر کے پاس۔ اچھا، وہ چمکتے ہوئی آنکھوں سے بولا، بنسی نام کا باس کا نام سنا ہے؟ میں تو بچپن میں ہی بمبئی آ گیا تھا۔ وہ بڑھ سا گیا اور راجے پور کب آئے؟ کئی سال ہو گئے، میں نے گنتے ہوئے کہا، کئی سال ہو گئے۔ یہاں کیا کرتے ہو؟ راج کمار وینے چندر کی سیوا کرتا ہوں جی۔ کچھ تعلیم حاصل کی؟ نہیں، میں نے جم کر کہا۔ شادی شدہ؟ اس نے بیم بگاڑ کر پوچھا۔ مجھے جواب دینے میں پھر مشکل پیش آئی۔ ڈالی میرے ساتھ رہتی تھی۔ نہیں جی، میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ کس کے پاس رہتے ہو؟ اپنے پاس رہتا ہوں، میرے منہ سے نکل گیا۔ میں پوچھتا ہوں، اور کون کون تمہارے ساتھ ہے؟ ایک عورت، ایک بچہ اور میں۔ وہ الجھ گیا، عورت کون ہے اور بچہ کس کا ہے؟ وہ ایک غریب عورت ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، اس کا پتی مر گیا ہے۔ بچہ اسی کا ہے۔ میرے ماں باپ بہن بھائی میں کوئی نہیں، سب ایک اندولن میں مارے گئے۔ اس نے ڈالی کے متعلق مجھ سے چند بےہودہ سوال کیے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں صبر اور تحمل سے انہیں رد کرتا رہا۔ فارم بھرنے کے بعد اس نے مجھ سے انگوٹھا لگوایا اور مسکراتا ہوا میرے برابر بیٹھے ہوئے شخص کے پاس چلا گیا۔ میرا فارم اندر پہنچا دیا گیا۔ انتظار کے یہ لمحے بڑے اذیت ناک تھے۔ پھر مجھے طلب کیا گیا اور ایک ایسے کمرے میں لے جایا گیا جہاں سزائیں دینے کے مختلف آلات رکھے ہوئے تھے، چمٹیاں، تیز روشنیوں کے بلب، کوڑے، بیگ اور چند جلا صفت اشخاص۔ یہاں لوگ اذیت سے چیخ رہے تھے، دردناک آوازیں بلند ہو رہی تھی، ہٹے کٹے لوگ بری طرح رو رہے تھے اور منتیں کر رہے تھے۔
उनकी पीठें नंगी थी। राजेपुर की पुलिस के ये इंतजाम देखकर मेरा जो हाल होना था वो हुआ। उनका मकसद यही था कि आगे कमरा सवालात में जाने से पहले मैं ये दिलचस्प नज़ारा भी कर लूँ ताकि बेवक़्त ज़रूरत काम आए। मैंने चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखा। काश मेरा बस चलता और मैं सब लोगों को आज़ाद कर देता जो दर्दो करब से चिल्ला रहे थे। उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि अपना रवैया मुतय्यन करने का मौका मिल गया। इन लोगों में प्रकाश बूंद का कोई मुलाजिम नहीं था। मुझे अंदर भेज दिया गया जहाँ 3-4 आला अफसरान एक मेज़ के गिर्द बैठे थे। एक तरफ सोफे पर आईजी खामोश बैठा था। मेरा फार्म सामने रखा था। तुम्हारा नाम मोहनदास है? एक अफसर ने पूछा। जी हाँ जनाब, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। मोहनदास, तुम्हारा फार्म सामने पड़ा है। तुम्हारी उंगलियों के निशानात महफूज कर लिए गए हैं। अफसर पहलू बदलते हुए बोला। लेकिन हम कुछ और भी जानना चाहते हैं। जो हुक्म सरकार। मोहनदास, तुमने अपने बारे में जो इतलात फराहम की हैं वो किसी कदर गलत हैं। बेहतर है कि तुम खुद ही सब कुछ सही बता दो। मैंने सब कुछ सही कहा है। फ़र्ज़ करो अगर ये मालूमात गलत हुई तो। वो नरमी से बोला। जनाब, गलत कैसे हो सकती है? मैंने शशुपन से कहा। क्या तुम ये समझते हो कि पुलिस को धोखा दिया जा सकता है? हो सकता है कि हम तुम्हारे बारे में पहले से बहुत कुछ जानते हों। मुमकिन है जनाब, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि आप मुझसे ज़्यादा क्या जानते हैं? मुझ में ना जाने कहाँ से जुर्रत पैदा हो गई। तीनों अफसरों ने मुझे गौर से देखा। ज़रूर ज़रूर, हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। हम बताएंगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुमसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। वो मेरी आंखों पर नज़रें जमाए हुए था। मैंने जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। तुमने सुना हमने क्या कहा है? सुन रहा हूँ जनाब, बहुत गौर से सुन रहा हूँ, मैंने सर हिलाकर कहा। और सोच रहा हूँ कि आप मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा क्या जान सकते हैं। तुम एक पढ़े लिखे आदमी की तरह बातें कर रहे हो। मैं आप ही जैसे लोगों की खिदमत करता हूँ। मोहनदास, हम सब कुछ जानते हैं लेकिन अभी बताने का वक्त नहीं आया। तुम्हारी गुज़श्ता ज़िंदगी हमारे सामने आईना है। मैं तबसरा करना चाहता था कि वो अच्छा पुलिस अफसर नहीं है। उसे किसी दुकान में सेल्समैन होना चाहिए। मगर मुझे अपनी रस्सियाँ कुछ ढीली होती हुई महसूस हुई। मैं समझ नहीं पाया था कि आप क्या कहना चाहते हैं। जो कुछ आपको मालूम है उसकी तायद चाहते हैं कि आपको मेरी ज़ुबानी सुनने का इश्तियाक है, या आप इस तरह के सवाल करके मुझसे कुछ उगलवाना चाहते हैं। मैंने जो जवाबात दिए हैं उन्हीं पर कायम हूँ। उसके साथ ही दोनों अफसर मुस्कुराए, लेकिन सवाल कुंदा सख्त झंझला गया और तलमलाकर बोला। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वह महाराजा के मुलाजम हों या राजकुमार के। नौजवान, तुम अपनी गुफ्तगू से खुद ये साबित कर रहे हो कि तुम आम मुलाजमों से मुख्तलिफ हो, लेकिन उससे यह साबित नहीं होता कि मैं गर्दन जदनी हूँ। आईजी का खफीफ का अक्सा कहका उभरा। खूब मोहनदास, रात तुम कहाँ थे? आईजी ने पूछा। हाँ, रात तुमने कहाँ बसर की? अफसर ने तकरार की। राजकुमार विनय चंद्र बहादुर की सेवा में बसर की। इसका सबूत क्या है? सिर्फ राजकुमार या कोई और? उनकी बहादुर, उनकी बहन शारदा, बस और कोई नहीं। ये सबूत नाकाफ़ी है, इसके सिवा भगवान के पास भी सबूत है। मोहनदास, तुम्हारे बारे में भून ही के एक आदमी ने शुबह जाहिर किया है कि तुमने कल रात बीना रानी को कत्ल किया और इससे पहले तुमने 2 मुलाजिम मारे थे। तुमने राजकुमार जगदीप का घोड़ा लूट दिया था। बहुत भून के कुछ लोग तुमसे बड़े नाखुश हैं। ये आम पुलिस नहीं, स्पेशल पुलिस है, और ये तुम्हारे लिए अच्छी बात भी है, बुरी भी। बताओ, बीना रानी से तुम्हारे तल्लुकात कैसे थे? जनाब, पहली बात तो ये कि मैं रात को राजकुमारी विनय चंद्र के पास मौजूद होने की शहादत रखता हूँ। दूसरा, अगर आप इसका असरार ही है और मैंने बीना रानी को कत्ल किया है तो मैं आपसे इसका सबूत तलब कर सकता हूँ। आप कहते हैं कि भून के कुछ लोगों ने शुबह जाहिर किया है और वो मुझसे नाखुश हैं, तो दुनिया में किसी आदमी से हर शख्स कहाँ खुश रह सकता है? राजकुमार के करीब होने की वजह से बहुत से लोग मुझसे नाराज़ होंगे। सिर्फ इस शुबे पर आप मुझे परेशान करना चाहते हैं तो शौक़ से कीजिए। मेरे लहजे में बतदरीज अज़म पैदा हो रहा था। बीना रानी बहुत अच्छी औरत थी और मुझ पर खासी मेहरबानी करती थी, हुक्म भी दिया करती थी, नाराज़ भी हुआ करती थी। भला मुझे उनसे कौन सा इख्तलाफ हो सकता है जो मैं इस अच्छी औरत के खून से अपने हाथ रंगता? इख्तलाफ? अफसर ने तन से कहा। तुम हमें बेवकूफ़ समझ रहे हो। तुम्हारा इख्तलाफ नहीं, तुम्हारे आकाओं का इख्तलाफ। दूसरे पुलिस अफसर ने दरमियान में दखल दिया। मोहनदास, सच सच बताओ, वरना हम दूसरे ज़राए इस्तेमाल करना भी जानते हैं जो मैंने यहाँ आते हुए देख लिए हैं। कि आपके ख्याल में ये सब लोग बीना रानी के कातिल हैं?
नहीं, मगर इनमें से कोई एक ज़रूर है। जनाब, मैं आपसे कहूँगा कि आपने एक गलत आदमी को पकड़ा है। ये तो अभी पता चल जाएगा। तुम हमसे तावन नहीं करना चाहते। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं ख्वाह बीना रानी के कत्ल का इकरार कर लूँ? हम हक़ाइक़ जानना चाहते हैं। अफसर मेज़ पर मुक्का मारते हुए बोला, हमें मालूम है कि तुम बहुत कुछ जानते हो। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि रोज़ कोई ना कोई कत्ल हो जाता है। राजकुमार वीनस रोज़ मुलाजमों के फ़राइज़ बदल देते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि ये किसी बड़ी और गहरी साजिश के तहत हो रहा है। दरमियान के लोग यूं ही बीच में मारे जा रहे हैं, लेकिन असल लोग कौन हैं ये मैं नहीं जानता। मुमकिन है कि आप जानते हों, मगर वो आपके इख्तियार में ना हो। मैंने जोशीले अंदाज में कहा, तुम्हारी बातें बहुत दिलचस्प हैं। तुम कोई गहरे आदमी मालूम होते हो। तुम्हारी ज़ुबान साफ़ और दलेराना है। बहरहाल बीना रानी का कत्ल, परशोत्तम, कमर प्रदेप और दूसरे लोगों का कत्ल एक ही रात में, ये सब किसी एक ऐसे सिलसिले की कड़ियाँ मालूम होती हैं। फिर आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? एक रात में एक आदमी कितने कत्ल कर सकता है? जबकि कमर प्रदीप बहादुर की हवेली और प्रकाश भून का फासला आपको मालूम है। मुमकिन है कि ये वारदातें किसी एक शख्स ने ना की हों। हम ग्रोह की बात कर रहे हैं, और वो ग्रोह जो बड़े लोगों का अलाकार है, समझे। और हम पूरे तहफ़्फ़ुज़ का वादा करते हैं अगर इस सिलसिले में हमारी मदद की गई। मेरे दिल में पुलिस का जो खौफ था, अब वो बड़ी हद तक रफ़ा हो चुका था। पता नहीं उन लोगों की गुफ्तगू का झोल था, या साधु के दखल अंदाजी का करिश्मा, या मेरे पुरअज़म और बेनुक्स लहजे का तासर कि मेरे और उनके दरमियान बातचीत आम रवश से हट कर हो रही थी। उन्हें मेरे बारे में किसी ने मौसर तरीके से बहकाया था और मुझसे कुछ उगलवाने के लिए मुतल्लक और गैर मुतल्लक सवालात करते रहे, और मैं सुकून से एहतियात से जवाब देता रहा। एक अफसर ने दूसरे अफसर से अंग्रेज़ी में कहा, मेरा ख्याल है कि हम मामलात को तूल दे रहे हैं। ये एक चालाक शख्स है। ऐसे लोग बातों से नहीं मानते। इसे सामने के कमरे में भेजना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अगर वीनस चंद्र इस बात का शाहिद है कि ये रात भर उसके साथ करीब मौजूद रहा है, तो कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। दूसरे अफसर ने जवाब दिया, वो तो यही कहेगा कि इस तरह तो हम कभी मुजरिमों तक नहीं पहुँच सकते। हर शख्स अपने गिरोह की हिमायत करेगा। ख्याल रहे कि हमारे महाराजा के सामने जवाब देना है। हमें किसी खौफ के बगैर हर शख्स को टटोलना चाहिए, चाहे कोई किसी भी कितना ही करीब क्यों ना हो, वरना हम यहाँ क्या कर सकते हैं। ये ज़ुबान दराज शख्स बड़ा ढीठ मालूम होता है। मेरी राय में हमें इसी से कुछ मालूमात हासिल हो सकती हैं। आपकी क्या राय है सर? पुलिस अफसर ने आईजी से पूछा। आईजी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो चौंक कर बोला, खासा पेचीदा मसला है। मुझे बार बार साधु महाराज का ख्याल आ रहा है। वो धर्मात्मा इस शख्स की हमायत क्यों कर रहा था? एहतियात रहे, वो कोई मामूली साधु नहीं है। ओ सर, ये मुजरम साधुओं, पंडितों और जोगियों की बहुत सेवा करते हैं। मुमकिन है कि साधु इस शख्स से बहुत खुश हो और अपने सेवक की हमायत करने चला आया हो। वैसे भी हमें तो हिम्मत में नहीं पड़ना चाहिए। तुम कहते हो तो ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें एहतियात का मशवरा दूंगा। आईजी कश्मकश में मुब्तला था। मोहनदास, पुलिस अफसर ने हिंदुस्तानी में मुझसे कहा, और उसका लहजा सर्द था, हमें अफसोस है कि तुमने प्रकाश भून की सरगर्मियों, बीना रानी के कत्ल और दूसरी खूनी वारदातों के सिलसिले में हमारी कोई मदद नहीं की। ऐसी सूरत में पुलिस के पास एक ही दरिया रह जाता है कि वो जबरन मालूमात हासिल करे। सामने के कमरे में चले जाओ। हम नहीं चाहते, लेकिन तुमने खुद हमें इस पर मजबूर कर दिया है। अब भी मौका है कि तुम एक नौजवान आदमी हो। तुम्हारे सामने अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हम तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए सिफारिश कर सकते हैं। अगर तुम्हें किसी का खौफ है तो हम तुम्हें पूरे तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाते हैं। मुझे जो कुछ कहना था वो मैंने कह दिया है। अफसर ने घंटी बजाई और 2 तनमंद कांस्टेबल सैल्यूट करते हुए हाजिर हुए। अफसर ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। एक कांस्टेबल ने मेरा दायां बाजू और दूसरे ने बायां बाजू पकड़ा। मैं समझ रहा था कि ये लोग मेरी दलीलों से खासे मुतासर हो गए हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। साधु की बात पे गई। वीनस चंद्र की सिफारिश भी काम नहीं आई। दोनों कांस्टेबल मुझे पकड़ कर ले चले, कुछ इस अंदाज से जैसे मेरी और उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी हो। कमरे में गुप्त अंधेरा था, मगर फ़ौरन वो तेज़ रोशनियों में नहा गया। मुझे एक जन्म खड़ा कर दिया गया। सामने के कमरे के शीशे से पर्दा उठा दिया गया। शीशे से उनके तीनों अफसरान और आईजी के चेहरे नज़र आने लगे। वो शीशे के पीछे से मेरा तमाशा देख रहे थे। इसके कपड़े उतार दो। कमरे में एक तेज़ आवाज़ गूंजी और ये आवाज़ माइक से आई थी।
मालूम होता था कि राजेपुर के कोतवाली की तामीर में अंग्रेज़ों ने ख़ास तौर पर दिलचस्पी ली है और स्कॉटलैंड यार्ड का तरीक़ाकार हिंदुस्तान में भी राइज किया है। मुलज़मों को दहशतज़दा करने के लिए यहाँ हर चीज़ मौजूद थी। कांस्टेबल ने मेरा कोट उतार दिया, फिर कमीज़, फिर बनियान। मैं चुपचाप खड़ा रहा। बैद, माइक से हुक्म सादर हुआ। कांस्टेबलों के हाथ तड़प रहे थे। उन्होंने अपने लचकदार बारीक बैद फिजा में उठाए और सड़ाक सड़ाक मेरी पुश्त और पिसलियों पर मारने लगे। जानवरों को भी कोई इस तरह नहीं मारता। तकलीफ़ से मेरा बुरा हाल हो गया। आंखों से रोशनी जाती हुई मालूम हुई, लेकिन मैं आंखें मीच कर ये ज़रबे बर्दाश्त करता रहा और मैंने मुंह से उफ तक नहीं की। मेरी खामोशी से उनके हाथों में और तेज़ी आ गई। 1, 2, 4, 6 और मेरे जिस्म की रोई बीदों से धुनकी जा रही थी। चीखे घूंटने का करब उस तकलीफ़ से ज़्यादा शदीद था। ठहरो, आवाज़ आई, इसे बिल्कुल बरहना कर दो। गोया उन्होंने जुल्म सितम की ठान ली थी और वो मुझे बहुत ढीठ, पस्त और बेज़मीर समझते थे। मैंने अपना बलाई लिबास उतरवाने और बैद खान में कोई मज़ाहमत नहीं की थी, लेकिन यह ताज़ा हुक्म नाकाबिले बर्दाश्त था। इस तरह उन्हें यह भी मालूम हो जाता कि मेरा नाम मोहनदास नहीं बल्कि कुछ और है। मैंने आवाज़ बुलंद करके कहा, मैं आपसे रहम की दरख्वास्त करता हूँ जनाब, अपना हुक्म बदल दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, ये फ़ैसला करने का हक़ हमें है। अगर तुम इसे एक बुरी बात समझते हो तो बताओ तुम किस किस को जानते हो। बीना रानी का कातिल कौन है? परशुत्तम को किसने कत्ल किया है? कंवर प्रदेप? मैं नहीं जानता, मैंने कह दिया है, मैं नहीं जानता। मैंने गुस्से से कहा, तुम अजीब लोग हो, यकीन नहीं करते। बकवास बंद करो, कांस्टेबल से बरहना कर दो और उसके जिस्म पर उस वक़्त तक कौड़े बरसाते रहो जब तक इसकी ज़ुबान बाहर ना निकल आए। ये कोई आदी मुजरम मालूम होता है। मैंने लम्हों में अपने आप को आमादा किया। जमशेद आलम, मौत तो एक दिन आनी है। मेरी मौत तो वैसे भी टल रही है और उसे पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन मौत कम अज़ कम ऐसी ज़रूर हो कि लोग याद रखें कोई ज़िंदा शख्स था। चुनाचा जैसे ही दोनों कांस्टेबल मेरी तरफ झपटे और उन्होंने मेरा लिबास उतारने की ज़्यादती शुरू की, मैंने अपने दोनों हाथों से उनकी गर्दनें दबोच लीं। किसी मुलज़म से वो ऐसी तवक्का नहीं कर सकते थे। मैंने तेज़ी से उनकी गर्दनें छोड़कर उनके बाल पकड़ लिए और एक तरफ दूर ले जाकर उनके सर ज़ोर से आपस में टकरा दिए कि उनके तनुमंद कवि अल हबशा जलादों की चीखें एक साथ बुलंद हुईं। फिर मैंने अपने बेदरपे ठोकरों से उन्हें उठने नहीं दिया। वो बेहोश हो गए। तुम पुलिस पर दस्तरादी के भी मुर्तकब हुए हो। मैं इज़्ज़त की मौत मरना पसंद करता हूँ। तुम अपनी शहादतें खुद दे रहे हो। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुम ये समझते हो कि मेरे सीने में कुछ है और इस तरह तुम मुझसे कुछ अगलवा लोगे तो सुन लो कि तुम ज़िंदगी भर इसमें कामयाब नहीं हो सकते। तुम्हारा वास्ता अब तक बेगैरतों से पड़ा है। मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम किसी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। तुम्हारे पास एक ही नुस्खा है, अज़ार, तशद्दुद, मार पटाई, एक ही ज़ुबान। उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। शायद माइक का स्विच बंद कर दिया गया। शीशे से नज़र आ रहा था कि वे एक दूसरे से मशवरा कर रहे थे, लेकिन अब कि एक साथ 4 कांस्टेबल कमरे में आए। उनके हाथों में हंटर थे। एक ने आते ही मेरे कमर पर हंटर आजमाया और मैं तकलीफ़ से बिलबिला उठा। फिर उन चारों ने बीक वक़्त अपने अपने हंटर उठाए और मैंने 16 बार नज़रों से घूर कर देखा और उस जुर्रात पर वो कुछ जुज़्ब से हुए। शुरू करो, माइक से हुक्म अरसा हुआ और मैंने पहले ही सोच कर निशस्त बांध रखी थी। चुनाचा उनमें से 2 तो अपने हंटरों समेत मेरे बाजुओं की गिरफ्त में आ गए। दूसरी तरफ से मेरी पीठ पर भी हंटर पड़े, लेकिन इस अरसे में यक्के बाद देगरे। मैंने अपनी टांगें उठाकर उनके पेटों में इस दौर से रसीद की कि वह तलमलाते हुए फर्श पर तड़पने लगे थे। मुझ पर जुनून तारी हो गया और मैं एक पागल शख्स था जो पागल खाने से भाग आया हो। मैं कोई शेर था जो पिंजरे से निकल आया हो और मुझे अपनी ताकत पर खुद हैरत हुई। ये कैसा ज़ोर था, लोहे का ज़ोर, और ये कैसी फुर्ती थी जिसमें बिजली भरी हुई थी। मैं 2 को आसानी से खामोश करके बाकी 2 की तरफ लपका। अब सूरत हाल यकसर बदल गई थी। कांस्टेबल मुझ पर हमला करने के बजाय मुझसे घबरा रहे थे। हंटर उनके हाथों में उठे रह गए और उधर से माइक पर अहकाम सादर हो रहे थे। उन्हें उकसाया और खौफजदा किया जा रहा था और उधर मैं मरने से पहले बाकी 2 कांस्टेबलों से निमटने की कोशिश कर रहा था। उनमें से एक मेरे हाथ में आ गया और वो कांप रहा था और मैंने उसका हंटर छीन कर एक ठोकर लगाई। ठोकर इतनी ज़ोर की नहीं थी, लेकिन उसने बेहोश होने में ही आफियत समझी।
اب صرف ایک شخص رہ گیا تھا۔ وہ ہنٹر تول رہا تھا مگر اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ ٹھہرو موہن داس، اور جب میں اس کی طرف بڑھا تو مائک سے کہا گیا۔ میں نے شیشے کی طرف بے پرواہی سے نظر کی۔ میری کمر اور ہاتھ پیر بری طرح دکھ رہے تھے۔ ہر رات ایک نیا فساد میرا منتظر رہتا تھا۔ دن بھر ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں ملا تھا، اور اس سے پہلے کئی راتیں بھی جاگتے ہوئے گزر گئی تھیں۔ پھر بھی میں نے بنیان کرسی سے اٹھا کر اطمینان سے پہنی، اور اس کے بعد قمیض اور کوٹ، اور پھر میں وہیں ان کے دوسرے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ چوتھا کانسٹیبل مجھ سے کچھ فاصلے پر سہما ہوا کھڑا تھا۔ شیشے کے اس پار ان میں تیز بحث ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں کوئی آواز نہیں سن سکا۔ پھر کسی نے فون اٹھایا۔ آئی جی نے فون پر بات کی۔ فون کے بعد ان کے درمیان دوبارہ تکرار شروع ہو گئی۔ شاید ان میں کسی مسئلے پر اختلاف تھا۔ ہر افسر اپنے نقطہ نظر کی وضاحت پر زور انداز میں کر رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے دیکھتے رہے، اور اسے اندازہ ہوتا تھا کہ میرے سوا کوئی اور موضوع گفتگو نہیں۔ پھر وہ کسی ایک نقطے پر متفق ہو گئے۔ مائک سے فوراً مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اندر آ جاؤں۔ چوتھے کانسٹیبل نے آگے آ کر دروازے کی طرف اشارہ کیا اور مجھے دوبارہ افسران کے کمرے میں پہنچا دیا۔ موہن داس، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری بات پر یقین کر لے، لیکن اگر تم پہلے بھی کچھ نہیں جانتے تھے تو اب جان سکتے ہو۔ ہم تمہیں اس امید پر آزاد کر رہے ہیں کہ ہمیں تمہارا تعاون حاصل رہے گا۔ دیکھو، یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے۔ کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ روز خون خرابے بہیں، روز گھر اجڑیں؟ پولیس کا مقصد محض انصاف اور امن و امان قائم رکھنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں شریف، بہادر اور جرأت مند لوگوں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ تم فون نمبر 3415 پر کسی وقت بھی ہم سے رابطہ قائم کر کے ہمیں صورتحال سے مسئلہ کر سکتے ہو۔ تمہاری معلومات سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ اس تعاون کے عوض پولیس مختلف طریقوں سے تمہارے کام آ سکتی ہے۔ تم پیسے کے لالچی بھی معلوم نہیں ہوتے، مگر پیسے کے علاوہ بھی ہمارے پاس اپنے لوگوں کو دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، عزت و احترام وغیرہ۔ شکریہ جناب، میں آپ کی تمام باتیں سمجھ گیا ہوں۔ ممکن ہے کہ کسی وقت آپ کو کھٹکھٹانے کی ضرورت پڑے۔ اگر آپ پہلے ہی میری بات مان لیتے تو یہ تلخی کو پیدا ہوتی۔ میرے جسم پر گہرے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ یہ سبق مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ ہمیں بھی تمہاری جرأت ہمیشہ یاد رہے گی، ایک افسر نے کچھ دلی سے کہا۔ اصل میں یہ سب کچھ ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہماری جگہ تم ہوتے اور تمہیں بھی کسی کو جواب دینا ہوتا تو تم بھی یہی کرتے۔ پولیس افسروں کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا، اور میں نے ان کی طرف سے دوستی کی یہ پیشکش غنیمت جانی۔ خواہ مخواہ کی حجت نہیں کی، اور نہ طنز کیا، اور نہ اپنی تکلیف کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے بہت جلد میرے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا۔ شاید میرے تیوروں سے وہ بھانپ گئے تھے کہ موت کے لیے کمر بستہ ہو گیا ہوں، اور میں ایک جنونی شخص ہوں، اور ایسا آدمی مجرم نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں انہوں نے آپس میں کیا مشورے طے کیے تھے۔ انہیں سادھو کی معنی خیز باتیں یاد آ گئی ہوں گی۔ اس نے کہا تھا کہ جا چلا جا، دیر نہ کر، تجھے جلدی آنا بھی ہے۔ یہ تفتیش ان کے لیے ایک نئے قسم کا تجربہ بھی ہوگی۔ آئی جی صاحب بھی خوش نظر آ رہے تھے۔ 2 کانسٹیبلوں کو بلا کر حکم دیا گیا کہ مجھے کوتوالی کے باہر چھوڑ دیا جائے۔ نہیں جناب، مجھے اپنی گاڑی میں بھون بھجوائیے۔ جو لوگ میری شکایت کر سکتے ہیں وہ راستے میں مجھے مار بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے موہن داس، ہم تم سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو کیا صورت ہوگی؟ افسر نے کانسٹیبلوں کو باہر بھیج کر مجھ سے پوچھا۔ مجھے فون کر دیا جائے اور جگہ بتا دی جائے۔ اگر مجھے کچھ معلوم ہوا تو میں ضرور آپ کے پاس آؤں گا، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ میں اپنے راج کمار وینر چندر سے محبت کرتا ہوں، اور وہ ایک شریف اور سادہ مزاج نوجوان ہے۔ سازش کا جال ان کے گرد بنا گیا ہے، اور سب سے پہلے پرکاش چندر پر اسرار حالت میں مارے گئے، پھر موہیش چندر، اور پھر بھون کے کئی ملازم۔ کنور پردیو کی حویلی میں تو پہلی بار حملہ ہوا ہے۔ آپ اگر واقعات کی کڑیاں ملائیں تو آپ کو وینر چندر مظلوم نظر آئیں گے۔ پرسوں رات ان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اتفاق سے وہ بال بچ گئے۔ ان کا غریب ڈرائیور ان کے دھوکے میں مارا گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ مہاراجہ اور فرنگیوں کا جھکاؤ کس طرف زیادہ ہے، مگر آپ کو ایک دیانتدار پولیس افسر ہونے کی حیثیت سے اصل حالات کی کھوج کرنی چاہیے۔ بیٹھ جاؤ موہن داس، آئی جی نے خوش اخلاقی سے کہا۔ شکریہ، آپ کی نرمی دیکھ کر کچھ باتیں خود بخود زبان پر آ گئیں۔ میں کنور پردیش چندر کے قریب رہتا ہوں، اور میں نے ان کی باتیں سنی ہیں۔ وہ خود بھی حیران و پریشان رہتے ہیں کہ ان کے خاندان کو مسلسل نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے۔ میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا ہے کہ راج پاٹ مہاراج کا ہے، اور ہمیں اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ جھگڑے کی بنیاد ہے، اور پھر ایسے عالم میں جب فرنگی نے ہندوستان کی بیشتر ریاستیں ہضم کر لی ہیں۔
राजा लोग उनके हाथों में कठपुतलियां हैं और ऐसे में कौन अक्लमंद राजपाट की ख्वाहिश करेगा। राजकुमार वीनस चंद्र कभी तनहा होते हैं तो मुझसे कहते हैं, मोहन इन्हें कौन समझाए और हमें सुकून की ज़िंदगी से मोहब्बत है। मैंने कुछ देर वहाँ ठहरना और ये बातें उनके गोश गुजार करना मुनासिब समझा और वो तवज्जो से सुनते रहे। फ़र्ज़ करो किसी मामले में तुम ये महसूस करो कि राजकुमार वीनस चंद्र की ज़्यादती की है, तो क्या तुम फिर भी उनसे वफ़ादारी निभाते रहोगे? यानी आपका मतलब है कि फिर मुझे उनसे वफ़ादारी ख़त्म कर देनी चाहिए। मैं जज नहीं, उनका मुलाज़म हूँ, मैंने दबे लफ्ज़ों में कहा। हाँ, अगर मौका मिला तो उनकी गलतियों की निशानदही कर सकता हूँ। एक मुलाज़म को ये मौका मुश्किल ही से मिलता है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके महाराजा और फ़रंगी ज़्यादती कर रहे हैं, तो क्या आप मुलाज़मत छोड़ देंगे? उनकी शिकायतें लेकर उनके बड़ों के पास जाएंगे? उन्हें मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। मोहनदास, तुम एक मुलाज़म से बढ़कर बातें कर रहे हो, अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा। सब यही कहते हैं साहब, किस्मत की बात है। हालात दूसरे होते तो मैं आप लोगों की तरह इन कुर्सियों में से किसी पर बैठा होता। साधु देवराज तुम्हारे बारे में क्या कह रहे थे? अब छोड़िए, कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ सकते। मैंने उन्हें टालने की कोशिश की, मगर हम उन्हें समझना चाहते हैं। इसके लिए साधु महाराज ही मुनासिब आदमी हैं। मैंने कहा, और मुझे इजाज़त दीजिए, आपकी मार और आपकी बातें याद रहेंगी। ये यकीनन एक खिलाफ मामूल चीज़ थी कि वो मुझे दरवाजे तक पहुंचाने आए। अक्ल हैरान थी कि यह क्या माजरा है। इस वक्त मुझे अपने आप में खुद एतमादी की ज़बरदस्त क़ुव्वत महसूस हुई। कोतवाली के हाथे में खड़ी हुई जीप मुझे लेकर राजेपुर की सड़कों पर दौड़ने लगी। रात का 1:30 बज रहा था। मैं 3 साढ़े 3 घंटे तक कोतवाली में अपने हक़ में दलीलें देता रहा था। जिस्म की दुखन भी अब कुछ कम हो गई थी। प्रकाश भवन के बाहर खड़े हुए मसला पुलिस के दस्ते ने जीप रोक ली और ड्राइवर की शनाख्त के बाद उसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। मुझे देखकर गेट पर मौजूद बूढ़े दरबार ने सलाम किया, जैसे मैं भी कोई पुलिस अफसर हूँ। आदमी अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से कैसे शनाख्त किया जाता है? आदमी तो सभी एक जैसे होते हैं। चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। मेज़, कुर्सियाँ, लिबास, जेवरात, गाड़ियाँ, गर्ज के जितनी चीज़ें ज़्यादा होंगी वो शख्स उतना ही अहम होगा। गोया ज़िंदगी में लोगों की तवज्जो हासिल करने का उक़दा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर इख्तियार हासिल किया जाए। जब से दुनिया में नत नई चीज़ें बनने लगी हैं, यही रुझान नज़र आता है। अब ताकतवर भी ज़्यादा चीज़ें रखने वाले मुख्तारों के सामने झुक जाते हैं और ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। बूढ़े दरबार ने मुझे नहीं, दरअसल उस जीप को सलाम किया था जिसमें मैं बराजमान था, और मैं भी यही करता था। हम सब यही करते हैं, चीज़ों को सलाम करते हैं। प्रकाश भवन सूना सूना सा था क्योंकि बेशतर मुलाजिम कोतवाली में थे। औरतें अपने मर्दों के इंतज़ार में बाहर निकल आई थी। बूढ़े भी कमरे झुकाए उनके पहलू में पहलू खड़े थे। मैं जीप से उतरा तो सब ने मुझे घेर लिया और मैंने उन्हें तसल्ली दी कि उनके अजीज़ सुबह तक वापस आ जाएंगे। डाली को भी मालूम हो गया था कि मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई है और वह सोगवार हजूम में गर्दन झुकाए आंसू बहा रही थी। मुझे देखा तो तड़प गई और सब के सामने आकर लिपट गई। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे घर जाने और आराम करने पर राज़ी किया और मुझसे जल्द घर वापस आने का वादा लेकर ही टली। चंद घंटों की नाकाबिले बयान होलनाकी के बाद मैं फिर वीनस चंद्र के मालिक के दरवाजे पर खड़ा था। मुझे अंदर जाते हुए झिझक हुई। कई सवाल ज़हन में गुडमड हो रहे थे और मुझे उनके तज्ज़िये के लिए वक़्त दरकार था। मैंने कुछ देर तवक़्क़ुफ़ किया और सोचने लगा कि अगर वीनस चंद्र अपने बिस्तर पर महू ख्वाब होगा तो मेरे एहसासात क्या होंगे, और मुझे आज सुबह के वाक़े का ख्याल आ गया। वीनस ने बेहद खुश असलूबी से मेरी नदामत दूर करने की कोशिश की थी। आज का दिन फिर हंगामा रहा। ताज़ियतदारों का मेला लगा रहा। बीना रानी खासी मकबूल और मजलसी औरत थी। राजेपुर के तमाम रोसा और तजारत पेशा क्रियाक्रम में शरीक थे। उन्हें इस शानदार औरत की मौत भी शानदार अंदाज से हुई थी। आज वीनस से सिर्फ रस्मी बातों का मौका मिला था। ना आज दिन भर शारदा से मुलाकात हुई, ना जाने वो कहाँ थी। सुबह से मेरी नज़रें उसे ढूंढ रही थीं। मालूम नहीं कि उसके और वीनस के दरमियान क्या बातचीत हुई थी और उसने किस तरह अपने भाई का सामना किया था और मेरे बारे में जो कुछ कहा था वो किस तरीके से कहा था। मुलाकाती कमरे में रोशनी हो रही थी। मैंने कियास किया कि अंदर नर्सें ताश खेल रही होंगी और वीनस सो रहा होगा। इंसानों से ज़्यादा तवक्कात कायम करना गैर इंसानी बात है। मैंने आहिस्ता से दरवाजे को धक्का दिया। चटकनी चढ़ी हुई नहीं थी। सामने सोफे पर वीनस और शारदा बैठे हुए नजर आए।
उनके चेहरे लटके हुए थे और मुझे देखते ही जैसे उन्हें बिजली का शाक लगा और वो बेतहाशा मेरी तरफ झपटे। मैंने अपनी बदगुमानियों पर नफरीन की। परेशानी में आदमी कितना बड़ा शैतान हो जाता है। मोहन, उन दोनों की आवाज़ एक साथ उभरी और शारदा करीब आकर मेरा बाजू छूते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना? और मेरे मुंह से एक कराह निकली। शारदा ने मेरा दिखा हुआ शाना ज़ोर से पकड़ लिया था। क्या हुआ? मुझे यही डर था उन मालजादों ने तुम्हारा कोई ख्याल नहीं किया होगा। उसका हाथ जख्मी था, फिर भी वो मेरा कोट उतारने की कोशिश करने लगा। शारदा ने उसकी मदद की और मैं खामोश खड़ा रहा। जब उन्होंने मेरी कमीज और बनियान हटाकर मेरा जिस्म देखा तो शारदा की चीख निकल गई। जगह जगह से बदियाँ उभरी हुई थी और उनसे खून छलक रहा था। ये क्या हुआ? शारदा हज़ियानी अंदाज में बोली। अब बहुत हो गया, विनश ने करब से कहा, और मैंने उनसे बार बार कहा था कि तुम मेरे ख़ास आदमी हो। पुलिस की नज़र में सब बराबर हैं, मैंने मुस्कुराकर तबसरा किया। तुम्हारे के जाने के बाद मुझे कलमे भी करार नहीं आया। नर्सें अंदर बंद पड़ी हैं और इस परेशानी में मुझे और परेशान कर रही थी। शारदा को जैसे ही मालूम हुआ वो दौड़ती हुई उधर आई। मुश्किल ये थी कि मैं ज़्यादा इसरार करता तो पुलिस मशकूक हो सकती थी। शारदा ने महाराजा तक को फ़ोन कर दिया। कब किया? मैंने तज्जब से पूछा। कुछ देर हुई, मगर उस वक़्त तुम रास्ते में हो गए। महाराजा ने क्या जवाब दिया? महाराजा ने कहा कि यह एक रस्मी कार्रवाई है और सुबह तक पुलिस तमाम बेगुनाहों को छोड़ देगी। शारदा ने तेज़ी से कहा, बहरहाल अब तुम आ ही गए हो और ये कमीज़ और बनियान उतार दो, मैं तुम्हारा जिस्म सेक के देती हूँ। ये मेरे लिए खासे हैरान कन रवैये थे। राजकुमारी शारदा अपने भाई विनश के सामने मुझसे ऐसे इत्तेफाक का इज़हार कर रही थी और मैंने उसे गौर से देखा। विनश मुस्कुरा रहा था। मोहन, उसने मीठे लहजे में कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। शारदा जैसी लड़की तुम्हारी खिदमत के लिए मचल रही है और तुमने इस जागीर की सबसे अच्छी लड़की चुनी है। आप बहुत बड़े आदमी हैं विनश बाबू, मैंने खजाला से कहा। अच्छी बातें बंद कीजिए। मोहन, तुम बराबर के कमरे में जाओ। विनश, तुम उनकी मदद करो और उन्हें दीवान पर लिटा दो। शारदा ने अंदर जाते हुए कहा, मैं हीटर लाती हूँ, मैं सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। हो सके तो चाय पिलवा दीजिए, मैंने माजरत खवाहाना अंदाज में कहा। तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। खाया तो मैंने कोतवाली से बहुत है। वो तुमसे क्या कहते थे? तुमने तफसील नहीं बताई। बहुत दिलचस्प रुदाद है। हाँ, वो तो तुम्हारी चोटों से अंदाज़ा होता है। हम दोनों उठकर दूसरे कमरे में चले आए। विनश मुझे दीवान पर लिटा कर सराहने बैठ गया और तुमसे हज़ारों बातें करनी थी जो शारदा के सामने मुनासिब नहीं हैं। तुम थके हुए भी बहुत हो, आराम की आपको भी ज़रूरत है। आपने ड्रेसिंग करवाई, दवा पी, इंजेक्शन लिया? नहीं ना, मैंने खफगी से कहा। क्या कैसी बातें कर रहे हो? मेरा खून खोल रहा है और वो तुम्हें पकड़ कर ले गए और मैं बेबसी से देखता रहा। वो सब ठीक कह रहे थे। क्या मतलब? अच्छा हुआ कि मुझे उनके पास जाने का मौका मिल गया। बड़ी बातें हुई और वह हैरान थे कि मैं मुलाज़िम होने के बावजूद इस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा हूँ। बाद में पता चला होगा कि तुम छुपे रुस्तम हो, आफत हो, बला हो, और उसके बावजूद उन्होंने तुम्हें मारा। हाँ, और फिर उन्होंने मुझे इज़्ज़त के साथ रुखसत भी किया और मैं उसे खुलासा बता रहा था और मैं से वो बातें संसर करता जा रहा था जिसकी बताने की ज़रूरत नहीं थी। शारदा के आने के बाद मैंने उसे और मुख्तसर कर दिया। विनश ने इसरार करके मेरी कमीज़ उतरवा दी थी। बनियान उतारने में मुझे हचकचाहट हुई और कुछ अच्छा नहीं लगता। चुप रहो, शारदा ने डांटते हुए कहा और वो हीटर पर रोई गर्म करने लगी। मजबूरन मुझे बनियान उतारना पड़ा। शारदा आहिस्ता आहिस्ता मेरा जिस्म सेंकती रही और उसकी मखमली रेशमी हाथों के लम्स से मुझे फरेरियाँ आने लगीं। मैंने तय किया कि बार बार कोतवाली जाऊंगा। शारदा, तुम कितनी अच्छी लग रही हो, विनश ने कहा। अब तो मुझे काम नहीं करने दोगे? अच्छा, एक काम करो, मोहन से हमारी सिफारिश कर दो कि ये हमें सताता बहुत है, विनश चंद्र ने शौकी से कहा। ये मेरे मुकाबले में तुमसे ज़्यादा करीब है। क्यों मोहन, तुम्हें कौन ज़्यादा पसंद है, मैं या शारदा? मेरा जवाब आपको मालूम है, मैंने कराते हुए कहा। ये बहुत तेज़ आदमी है शारदा। तुम्हारा भाई विनश चंद्र उसी की वजह से जिंदा है। आज रात में मर जाऊंगा, मैंने सिसकती भड़कते हुए कहा। क्यों? उसने हैरत से पूछा। ये बातें जिंदा रखने की कब हैं? उसकी नरम उंगलियां मेरी कमर पसलियों में रेंगती रहीं और फिर उसने मुझे विनश चंद्र का गर्म लिबास दिया और चाय ले आई। इतनी तेज़ी से तो हमारी नर्सें भी काम नहीं करती, विनश ने कहा। नर्सों पर आपने मेहनत नहीं की होगी, मेरे मुंह से निकल गया। सच बताओ मोहन, ये आगाज़ कब हुआ, विनश ने इश्तियाक से पूछा। बस हो गया और बहुत दिन हो गए। यानी इब्तदा किसने की थी? मैंने की थी, शारदा ने शर्माते हुए कहा। तुम इतनी मर्दम शनास कैसे हो गई? क्या तुम्हें मालूम था कि मोहन में इतने जोहर पोशीदा हैं?
یہ بڑا ظالم آدمی ہے، کھول میں بند ہے اور مسلسل جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں مجھے کچھ اندازہ ہے، شاردا نے وینش کو ٹھوکا مارتے ہوئے کہا۔ تم نے تنگ کر دیا، کاش یہ بات ہم ہی تک محدود رہتی۔ میں آج کی رات بھی ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی بون میں بہت سے لوگ تھے۔ میں نے پارو سے ملنے کا وعدہ کیا تھا اور وہ میرے انتظار میں سوئی نہیں ہوگی۔ ڈالی بھی بستر پر کروٹیں بدل رہی ہوں گی۔ رات گزری جا رہی تھی۔ شاردا نے مجھے آرام سے دیوان پر لٹا دیا۔ وینس چندر کا ہاتھ میرے ماتھے پر رکھا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کل رات کے واقعے اور اس کے اثرات پر گفتگو کرنے کے لیے بے چین ہے۔ شاردا کے سامنے ان خونی امور پر کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی اور میں نے ان دونوں سے اصرار کیا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں اور مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ اس سے میری مراد یہ تھی کہ میں ان میں سے کوئی ایک یہاں سے جانے کا اصرار کرے، اور ابھی تک مجھے ہر بات انوکھی لگ رہی تھی، جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ میں بہت سرمایا ہوا بستر پر دراز تھا اور وینس سے آنکھیں ملاتے ہوئے کترا رہا تھا۔ آخر وینس اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا، شاردا تم موہن کی خبر گیری کرو، مگر خیال رہے کہ یہ ہمارا بھی دوست ہے اور مجھ سے زیادہ ہے۔ خیر یہ تو آنے والے دن بتائیں گے کہ اس کی کس سے زیادہ دوستی ہے۔ افسوس تو یہی ہے کہ ہمارا رقیب بھی نکل آیا۔ آپ جا رہے ہیں؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا کرے جناب، مجبوری ہے، وینس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شاردا کچھ نہیں بولی اور وینس کمرے سے نکل گیا۔ ہم دونوں کو بھی چپ لگ گئی تھی اور میری نگاہیں چھت پر تھی اور شاردا فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ وہ بری طرح بہت دیر ہو گئی شاردا، اور میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اور میرے طرح تمہیں بھی یہ سب انوکھا لگ رہا ہوگا۔ ہاں وہ دیوان پر بیٹھ گئی اور میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھنے لگی۔ تم نے اس کا سامنا کس طرح کیا تھا؟ یقین ہی نہیں تھا کہ وہ زخمی حالت میں اٹھ کر چلا آئے گا۔ تمہاری طرح میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اسے سب کچھ صاف بتا دوں۔ وہ بہت جذباتی اور ضدی ہے اور ملاقاتی کمرے میں صوفے پر خاموش بیٹھا تھا۔ پھر تم نے اسے کیا بتایا؟ میں نے کہا کہ وینس میری بات سن لو، لیکن میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا کہ میں تو موہن کی آہٹ پا کر اسے دیکھنے آیا تھا۔ چونکا، مجھے اس کی کچھ ضروری باتیں کرنی تھی۔ تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ موہن میرا دوست ہے، میرا محسن ہے، اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ تمہیں تمہارا آئیڈیل مل گیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اداس تھا، نہیں مگر سنجیدہ ضرور تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم یہ تعلق بھون کی اور لڑکیوں کے تعلقات کی طرح نہ سمجھنا۔ تم مجھ پر اعتبار کر سکتے ہو اور میں تمہاری بہن ہوں، اور تم جانتے ہو کہ میں دوسروں سے بہت مختلف ہوں۔ میں نے موہن سے کہا تھا کہ وہ مجھے اس چار دیواری سے لے کر کہیں دور چلا جائے، اور اس نے تمہارا حوالہ دیا کہ وہ تمہیں اس موقع پر تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے محلوں کی زندگی میں سکون نہیں ملتا، مگر تم یقین کرو کہ میرا اس سے رشتہ بے حد صاف اور سچا ہے۔ اور اس نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میری بہن ہو اور سب سے زیادہ عزیز بہن، اور مجھے یہ اعتماد ہے کہ تم کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گی، جب کہ یہاں کی ریت یہی ہے۔ مگر تم موہن کے بارے میں کیا کچھ جانتی ہو؟ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ میں نے موہن کو ایک آدمی کے طور پر قبول کیا ہے اور میں دوسری باتوں پر توجہ نہیں دیتی، اور اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میرا انتخاب غلط نہیں ہے۔ پھر وہ میری باتوں میں دلچسپی لینے لگا اور پوچھنے لگا کہ تم اور کیا کیا جانتی ہو؟ تم نے بتا دیا ہوگا کہ میں تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتا ہوں۔ نہیں، میں نے یہ نہیں بتایا۔ بتاتے رک رہی، اور میں نے اس سے کہا کہ تم شاید اپنی مصروفیات، ماحول اور تربیت کی وجہ سے بعض جذبوں سے نا آشنا ہو، اور جب میں نے موہن کا انتخاب کر لیا اور اس نے مجھے اور تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں اور کیسے ہیں، اور اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میری آغوش میں سر دے کر رونے لگا۔ نہ جانے کیوں وہ روتا رہا، اور میں اسے اس کی خواب گاہ تک لے گئی اور اسے بستر پر لٹا کر دیر تک پاس بیٹھی رہی۔ وہ بھی چپ رہا اور میں بھی چپ رہی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تم موہن کے پاس جاؤ، کہیں میری خاموشی سے واپس آ جانے پر اس نے کوئی غلط رائے نہ قائم کر لی ہو، اور میں جب یہاں سے واپس آئی تو تم موجود نہیں تھے۔ میں باہر بھی نہیں جا سکتی تھی، پریشان پھرتی رہی، اور رات کو تمہاری جیبوں سے پستول اور نقدی نکلی تھی۔ طرح طرح کے اندیشے مجھے ستا رہے تھے۔ پھر میں اس کی خوابگاہ میں جاگتی رہی کہ شاید تم واپس آ جاؤ۔ صبح بینا رانی کے قتل کی خبر ملی اور جگدیپ کی حویلی سے ہولناک خبریں آنے لگی۔ جب تم آئے تھے تو تمہاری حالت بڑی خراب تھی اور لباس پر مٹی کے نشانات تھے اور رگڑیں تھی، پیشانی پر چوٹ کا نشان تھا، اور تمہیں اپنا ہوش نہیں تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں نے سارا دن کس طرح کاٹا ہے، اور میں تمہارے سامنے جان بوجھ کر نہیں آئی۔ بتاؤ موہن، تم کہاں سے آئے تھے؟ اور وہ میرے سینے پر گھونسا مارتے ہوئے بولی۔
कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम ना पूछो और ना जानो तो बेहतर है। बस इतना सुन लो कि मैं किसी गलत काम के लिए बाहर नहीं गया था। इस बूंद की बहुत सी ज़िंदगियों का सवाल था, गरीब मुलाजमों का मामला था जो रोज़ कत्ल हो जाते थे, समझी? तो क्या तुम और वो खौफज़दा आंखों से बोली। नहीं, मैंने तहम्मुल से जवाब दिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। बहुत पेचीदा मामलात हैं, ये आपस की दुश्मनियाँ नहीं हैं, ज़िंदगी और मौत का मसला है। मैंने कल भी तुम्हें समझाया था और मैं इसी अंदाज से बातें करके उसे खामोश कर सकता था, और मुतमिन तो नहीं हुई मगर रोने लगी। मोहन, तुम्हारी ज़िंदगी से और लोग भी वाबस्ता हैं, और वो लोग बहुत ज़िद्दी और अपने आप को खून कर देने वाले हैं। मुझे मालूम है शारदा, तुम कहाँ तक जा सकती हो। तुमने देखा कि अगर हम फरार हो जाते तो विनेश का क्या बनता और उसे कितना बुरा लगता। अब तो मेरी बातें माना करो। फिर मैंने अपने माथे की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ काम की चीज़ें भी भरी हुई हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम ज़ाया ना हो जाओ। तुम देखती रहो, अभी तो इब्तिदा हुई है। ये तुमने पहले भी कहा था और मुझे ऐसी बातों से खौफ आता है। तुम पगली हो। और मैंने उसके गाल पर चुटकी लेते हुए कहा, शायद ये सब पढ़ा लिखा बोल रही हो, हीकल को पढ़ो। और मैं इन दिनों शायरी पढ़ रही हूँ। तबाह हो जाओगी। तबाह तो तुमने ही कर दिया। ओहो, देखो मेरे दिल की धड़कनें गिनो। उसने मेरे दिल पर अपना चेहरा रख दिया और रात बीत रही थी। कमरे में सन्नाटा था। ऐसे आलम में नींद कहाँ आती, यहाँ तक कि सुबह का नकारा बज गया। मुर्गाने सहर खेजी से नगमा सराई शुरू कर दी थी। उठे सोने वालों, सहर आ गई है। मेरी आंखें खुली हुई थी। सुबह का नाश्ता तैयार था। शारदा के रसीले लबों का मशरूब। चलते वक्त मैंने उसे खींच लिया और उस गुंचा ज़ेन के लबों की पंखड़ियाँ तोड़कर मुंह में रख ली। वो भाग गई। मैंने अपने जामे में आने के लिए विनेश चंद्र का लिबास उतार दिया, और यह बीना रानी की मौत का दूसरा दिन था। सुबह ही सुबह बुजुर्ग औरतें मंदिर की तरफ जा रही थी। विनेश को एक नज़र देखकर मैं अपने क्वार्टर में चला आया। डाली ने दरवाज़ा खोला और मैं उसे गले से लगाए लड़खड़ाता डगमगाता पलंग तक ले गया और बेसुध गिर गया। जूते और कोट समेत मुझे नींद आ गई, और नींद ऐसी आई कि दुनिया माफिया से बेहोश नहीं हो गया। कहीं दोपहर को डाली ने झंझोड़ कर ज़िंदगी से मेरा राब्ता बहाल किया। कई रातों का कर्ज चंद घंटों में अदा नहीं किया जा सकता था। फिर भी यक गोना तशफ़ी हुई। नींद ज़िंदगी का कर्ज है, और आदमी को उसकी औकात का साथ दिलाने के लिए उससे बेहतर कोई और नुस्खा नहीं। लेकिन यह बेदारी ऐसी कातल चीज़ है कि नींद के शामियानों में बेइजाज़त घुस जाती है और फेल मचाती रहती है। इस मर्तबा मेरी नींद ने बेदारी को शिकस्त फाश दे दी थी, या यूँ कहिए कि बेदारी पूरी तरह आसूदा हो गई थी, थक गई थी। जिन लोगों का रिश्ता नींद से गहरा है वो बड़े खुशकिस्मत हैं, बेदारी की लो से बचते रहते हैं। डाली ने जब दोपहर का खाना मेरे सामने रखा तो मेरी खुराक देखकर वो दंग रह गई। शकरे, वो नाक चढ़ाकर बोली, खूब खा ले, पता नहीं फिर कब खाने का वक़्त मिले। तू बड़ी सूरनी है, अब तो तेरी ज़ुबान से मीठा जुमला ही निकलता ही नहीं। मैंने गर्म चिमटे से उसकी नाक पकड़ ली। आज बहुत खुश मालूम होता है। क्या कहीं आँख लड़ गई है? अरे आंखें तो रोज़ लड़ती रहती हैं, इसलिए यहाँ धरना दिए बैठा है। पहले तो कितना सीधा साधा था, अब तो तेरी शक्ल ही बदल गई है। पर मोहनदास बहरूपिये, उस दिन से डर जो भागा हुआ आ रहा है। देखा जाएगा, मैंने बेपरवाही से कहा, और मुझ जैसी इकसाम और हालात के लोगों के पास शायद यही जवाब होता है। डाली सच कहती थी कि वो दिन जो भागा हुआ आ रहा है वो तो ज़रूर आएगा। खाते खाते मेरा हाथ रुक गया। क्या सोचने लगा, वो फूकनी में बोली, और फूकनी उसने मेरे कानों में उड़ा दी थी। कुछ नहीं यार, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, बाद औक़ात तो तेरी चला देता हूँ। ठीक है, वो दिन ज़रूर आएगा, मगर तू जैसा सोच रही है मुमकिन है कि वैसा ना हो। मुझ पर अपने लहजे की बेयकीनी से घबराहट तारी हो गई। डाली ने मेरा घर में बैठना दूभर कर दिया। ख्याल था कि आज दिन का बड़ा हिस्सा घर में गुजारूंगा। सरदस्ते बाहर मेरी ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। डाली का काम सिर्फ रोना, कचौके लगाना और खाना खिलाना रह गया था। वो मुश्किल सवाल करती थी जिनके जवाब देने की मुझ में अस्तातत नहीं थी। लिबास तब्दील करके मैं बाहर निकल गया। आज मौसम बदला हुआ ज़रूर मालूम होता था। दिन में गुज़श्ता दिनों जैसा इंतशार नहीं था। प्रकाश बूंद पर गहरा सुकून छाया हुआ था, लेकिन उस सुकून में खौफ और उदासी की आमेज़श थी। डाली ने खाने के दौरान में मुझे बताया था कि बूंद के बहुत से मुलाजम कोतवाली से वापस आ गए हैं। उनमें से चंद की हालत बहुत मखदूश है।
हर एक की कमर पर बैदों और हंटरों ने जाल सा बिछाया हुआ है। डाली को अगर मैं अपनी कमर दिखा देता तो वो समुंदर हो जाती। मैंने उसे खुद से दूर दूर रखा था ताकि वो मेरे जिस्म के दुखते हुए हिस्से को ना छुए और उसने दुखती रगों पर हाथ रख दिया। पुलिस ने कुछ मुलाजिम रोक लिए थे और इस तरह गोया मेरा काम आसान कर दिया था। पुलिस ने उन लोगों को अलहदा कर लिया होगा जो प्रकाश बून के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ थे और यहाँ के मुखालफों के आलाकार बने हुए थे। दिलचस्प बात यह थी कि इनमें पुलिस का कोई ऐसा शख्स नहीं मिला होगा जो अपना तलक वीना चंद्र के गिरोह से ज़ाहिर कर सके। वीना चंद्र को कोई गिरोह बनाने का मौका नहीं मिला था, उसका गिरोह सिर्फ मैं था। पुलिस ने तफ्तीश के लिए दोनों तरफ के आदमी पकड़े थे और उनमें सब के सब जगदेव और अनजहानी पुरुषोत्तम बहादुर के नमकवार थे या वीना चंद्र की किसी और मुखालिफ ताकत के जिसका अभी मुझे इल्म नहीं था। पुलिस की मार का मुझे खूब अंदाज़ा था। लचकदार बैद और चमड़े की नरम हंटर में ऐसी सख्ती और कुव्वत होती है कि तमाम कसावतें बाहर आ जाती हैं। पुलिस अफसरों की आंखें खुल गई होंगी, हालांकि उन्हें आंखें खोलने की आदत कम से कम होती है। ये आंखें और कान ही सारे फसाद की जड़ हैं और उनके बदले कुदरत कोई और इंतज़ाम कर देती तो इंसानों की किस्मतें बदली हुई होती। मगर वो कौन सा गिरोह था जो जगदेव की हवेली में दीदा दिलेरी से दाखिल हो गया। पुलिस, महाराजा और लार्ड साहब के लिए यह सूरत हाल एक तशवीशनाक पहलू होगा। बार बार उनकी निगाह मुझ पर आएगी और वापस जाएगी। पुलिस से गुलू खलासी होने का ये मतलब नहीं था कि मुझे निजात का परवाना अता हो गया और जिन लोगों ने संगीन वाक़े से मेरा नाम वाबस्ता किया है वो खामोश बैठ गए होंगे। वो इस बार ज़्यादा शिद्दत से मेरा नाम ले सकते हैं। जब तक जबदीक ज़िंदा है उसे इरेस के मैदान में चोटें बराबर याद आती रहेंगी। प्रीत को अपनी माँ और जगदीप को अपने बाप की मौत सताती रहेगी। पुलिस मुझे दोबारा तलब कर सकती है और इस बार बैदों और हंटरों की बजाय किसी और चीज़ से काम ले सकती है। पुलिस से बार बार मुलाकात मेरे हक़ में मुफीद नहीं थी। मुझे अंदाज़ा था कि मैं इस तरह के पैरोल पर रहा किया गया हूँ और मुझे वादा माफ़ गवाह बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस तरह पुलिस आसानी से मेरी नकलो हरकत का ताक़ब कर सकती है। नाकामी की सूरत में पुलिस का मौजूद अमला तब्दील भी किया जा सकता है और ज़रूरी नहीं कि साधु देव महाराज हर मौका पर नमूदार हो जाए। वही बेदारी, वही फितरे, सकून इत्मीनान के चांदी झोंके चले थे कि देखते ही देखते खुश्क हवाओं में तब्दील हो गए। प्रकाश बोन की फसीलों के बाहर पुलिस तैनात थी और साक्षी मुलाजम कोतवाली में सरकार के मेहमान बने हुए थे। जगदेव की कमर अभी तक सीधी नहीं हुई थी। कई आदमियों को मैंने से पहले भी अब्दी नींद सुला दिया था। राजेपुर के बदमाशों का सरगना परशुत्तम चिता की आग में जल चुका था। पारों का दिल मैंने बदल दिया था। चंद दिनों के लिए गहरी नींद लेने और पेट भरकर खाना खाने के मकानात नज़र आते थे, मगर ये रात मैंने मुस्तरद कर दी। मैं बाग के गोशे में जाकर नरम घास पर लेट गया और ये वही मानूस जगह थी जहाँ कीचू से कई बार मेरी मुलाकात हुई थी। कीचू मैंने सोचना ही तर्क कर दिया। साधु की मेहरबानियाँ, पिंडत का रेशमा ख़त्मी होना बेसबब नहीं था और इनका सबब कीचू थी। मगर कीचू थी कौन? साधु मेरे मादी से वाकिफ़ था मगर खामोश रहा था और वो मुझे ये जगह छोड़कर दूर दराज पहाड़ों में ले जाना चाहता था। कहता था कि ये जगह तेरे लिए मुनासिब नहीं। ये पुरअसरार बातें जहन को बेकरार कर देती और मुझे इस वक्त ऐसा महसूस होता जैसे मैं एक मफलूज और माजूर शख्स हूँ। मैं जो हर मामले में जल्द से जल्द एक राय काम कर लेता था मगर इस मामले में नाकारा हो जाता था जिससे मेरी ज़िंदगी का गहरा तल्लुक़ था। इसलिए मैंने शिकस्त कबूल कर ली थी क्योंकि मैं यही कर सकता था। मुझे एहसास था कि परसों रात बहुत नाजुक वक्त में जब मेरे औसान खता हो गए थे, साधु अंधेरी रात में कहीं से निकलकर मेरी मदद को आ गया था। दरबानों ने मुझे उसके साथ भून में वापस आते देखा था मगर किसी ने पुलिस को ये नहीं बताया था कि उन्होंने सुबह नमूदार होने से पहले मुझे थका मांदा साधु के हमरा फाटक अबूर करते देखा था। इस तरह मेरी पिस्तौल की 4-5 गोलियां दरबानों पर दाया होने से बच गई थी। कल रात भी ऐन मौका पर आकर उसने आला अफसरान को मेरे बारे में मुतज़ल्ज़ल कर दिया था। उसने प्रकाश बून की तोहम परस्त औरतों के सामने मेरे कांधे पर हाथ रख के मेरी इज्जत बढ़ाई थी और ये बातें ऐसी तो नहीं थी कि उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता। मैंने फैसला किया कि मुझे साधु से दूर रहने की बजाय उसके करीब होना चाहिए क्योंकि उसी की बर्तरी में शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब यही है तो यही सही। पैरों में खोलन होने लगी। दूसरे लम्हे मेरा रुख मेहमान खाने की सिमत था।
मेहमान खाना 2 इमारतों में मुनक़सिम था। एक तरफ यहाँ छोटा लेकिन खूबसूरत मंदिर बना हुआ था, जहाँ पंडितों साधुओं के ज्ञान, पूजा पाठ और रहने के लिए बाकायदा हुजरे तामीर किए गए थे। दूसरी तरफ मस्जिद मेहमानों के कमरे बने हुए थे। मुझे साधु नहीं मिला, उसका शुक्रिया अदा करने की हसरत ही रही। अलबत्ता कच्छे वाले पंडित ऐश्वरी लाल ने मुझे देख लिया और वह चुपके चुपके मेरे पीछे आया और आम मेहमानों की इमारत में एक जगह मेरे पैरों पर गिर गया। मैंने इस मर्तबा उसे बुरा भला नहीं कहा, कांधा पकड़ कर उठाया और मजबूत लहजे में पूछा, पंडित ऐश्वरी लाल कैसे हो? ठीक हो महाराज, वो हाथ जोड़ते हुए बोला। पंडित, उस दिन फरंगी नारी के सामने तुमने बड़ी नादानी की थी, आइंदा ऐसी बातें मुझसे मत करना। मुझसे बड़ी भूल होगी महाराज, मुझे क्षमा कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ मेरी और भी ध्यान करो, कभी अपने द्वार बुला लिया करो, तुम्हारी संगत में मुझे भी कुछ मिल जाएगा। इतने कठोर तो मत बनो महाराज, वो आरदी से बोला। ऐश्वरी लाल, मैंने भारी आवाज़ में कहा, तुम जानते हो कि मैं किस रूप में यहाँ मौजूद हूँ। मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, तुम्हें संभलना चाहिए, तुम तो सब कुछ खोले देते हो। महाराज, वो मेरे कदम पकड़ने लगा। अब ऐसा नहीं होगा, तुम देख नहीं रहे हो कि यहाँ क्या खेल हो रहा है? मैं देख रहा हूँ महाराज, वो गड़गड़ा कर बोला। बस चुप रहो, समय का इंतज़ार करो। मैंने उसे थपकी देते हुए कहा, जाओ मंदिर में वापस जाओ। अब कब दर्शन होंगे महाराज? किसी दिन आ जाऊँगा या तुम्हें बुला लूँगा। वो मसरत से लड़ने लगा और कच्छा निचाने लगा और मैं उसे उसी हालत में छोड़कर आगे चला आया। फिर उसने मेरा ताक़ब नहीं किया, लेकिन अभी मैं चांदी कदम बढ़ा हूँगा कि ठटक कर रुक गया। मेरे सामने तरन्नुम खड़ी थी, उसका हाथ सलाम के लिए उठा हुआ था, आंखें नम थी, जुल्फ़ें बिखरी हुई थी। आदाब, उसने आहिस्ता से कहा। आदाब आप, मैं कहना चाहता था और वो अभी तक यहीं है, और मैंने फुर्ती से बात बदल दी। आपको मालूम है कि यहाँ क्या हो गया? जी कुछ सुना है, हम कई रातों से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। राजकुमार विनिश पर किसी ने गोली चला दी। गुज़श्ता चंद रातों में हैरत अंगेज़ वाक़यात पेश आए, इसीलिए आपको जहमत नहीं दी गई। आप हमें भूल गए हैं, हमें कौन याद रखता है? आपको कौन भूल सकता है? कल यहाँ एक रानी का खून हो गया और उधर राजकुमार जख्मी पड़े हैं। बताइए, आपको बुलाएं भी तो कैसे? आप तो इधर आ सकते थे। आने को बहुत जी चाहा, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे पेश आ गए और मैंने इसके हसीन चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा, वो दिन में भी इतनी ही चमकदार थी जितनी रात में, और बानो भी ऐसी ही थी, उसी तरह शगुफ्ता, अल्लड़ और ताबनाक। और उसे सामने देखकर उसके साथ गुजरा हुआ हर लम्हा याद आ गया। वो भी मेरा इंतज़ार कर रही थी और मुझे हैरत थी कि एक शब्द में उसने कैसी तवक्कात कायम कर ली। वह ऐसी लड़की भी नहीं थी जिसे आसानी से दरगुजर कर दिया जाता। तरन्नुम, मैंने उदासी से कहा, अब आप वापस चली जाएं, और इन दिनों यहाँ की फ़िज़ा बड़ी ख़राब है। फसील के बाहर मसला पुलिस खड़ी है। वैसे भी आपके इस माहौल का अंदाज़ा नहीं, खुद मेरी ज़िंदगी खतरे में है। उसके रुखसारों पर मोती लर्जने लगे। हमने कब ये गुरूर किया है कि हम आपको अपने साथ बांधने में कामयाब हो गए हैं? हम तो खुद बंध गए हैं। क्या ऐसी सूरत में भी आपको हमारा यहाँ ठहरना गवारा नहीं? अरे नहीं, मैंने कसमसाकर कहा, आप गलत समझ रही हैं। मेरा मकसद ये नहीं था। आप यहाँ क़याम करें और जब तक जी चाहे करें। हालात की ये तुर्शी ख़त्म हो ही जाएगी। आपको क्या बताएं कि कैसी मुश्किलों में गिरफ़्तार हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। काश ऐसा होता, काश आप हमें कोई हुक्म देते। आप में क्या कमी है? आपको फ़न आता है, आपके गले में रस है, और ये कुछ खूबियाँ कम नहीं हैं, और आपका दिल बहुत अच्छा है। लेकिन हमारी किस्मत बुरी है। मैं आपसे क्या कहूँ, आप अपने आप को हल्कान ना करें। यकीन कीजिए कि आपको दोबारा बाला खाने में भेजने को दिल नहीं चाहता, क्योंकि आपके यहाँ और माहौल छोड़ने की आमादगी है। मगर मैं आपसे कुछ कहने की कुव्वत भी नहीं रखता। मैं बहुत उलझा हुआ हूँ और आपने खान माँ बर्बाद के दरवाजे पर दस्तक दी है। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ इस एहसास के उम्मीदवार हैं कि आपकी रग़बत हमें हासिल होगी। हमारा कोई बड़ा मुतालबा नहीं है। मैं आइंदा 2-3 रातों में आपको ज़हमत दूंगा। यहाँ मेहमान खाने में ये बातें नहीं हो सकती और मुनासिब भी नहीं। हम आपका इंतज़ार करेंगे। आपके साथ जो लोग हैं उन्हें यहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं? यकीनन वो वापस जाने के लिए इसरार कर रहे होंगे। उन्होंने हमारी ज़िंदगी जहन्नम बना दी है। आपको पता नहीं कि हम किन किन बहानों से उन्हें रोके हुए हैं। मैं उन्हें मुतमिन करने की कोशिश करूँगा, मैंने उसे समझाते हुए कहा। तरन्नुम बड़ी दिलगुदाज बातें कर रही थी। ऐसे सवालों का जवाब फ़ौरन नहीं दिया जाता। मैं तो यूं भी पहले से मुतअद्दिद सवालों में घिरा हुआ था, और उसकी नम आँखों और मुल्तजगी चेहरे के सामने साफ जवाब देने की जुर्रत कोई शख्स नहीं कर सकता था।
मैं उसकी आंखों की बिजलियों से बच के चला तो आया, लेकिन वो तो मेरे जिस्म में खुप गई थी। उस शाम विनश की हालत निस्बतन बेहतर थी और वो मुलाकाती कमरे में मेहमानों के साथ बैठा हुआ था। मैं धीरे से अंदर रेंग गया। विनश ने मुझे देख लिया था। रात तक मैं कमरे में बंद दीवान पर लेटा रहा। प्रीत, हिमा, कसम, पुलिस ने मुश्तबाल मुलाजमों को तो तफ्तीश के लिए पकड़ लिया था, मगर महल के अंदर नरम बिस्तर पर सोने वाले असल लोग चैन की बंसरी बजा रहे थे। जी में आता था कि आज ही रात प्रीत के पास जाऊं और उसका मजाज पूछूं, लेकिन अखलाकन उसे अपनी माँ का गम बनाने के लिए कुछ मोहलत ज़रूर मिलनी चाहिए। ऐसे मौक़ों पर उसे कोई फैसला कौन बात नहीं हो सकती थी। बीना रानी की मौत के बाद मैंने उसका गमज़दा चेहरा एक ही बार देखा था। गौर से देखने की हसरत थी कि उसके आलम में वो चमकीली तितली कैसी लगती है। अंधेरा गहरा होने के बाद मैं बाहर आ गया और उस वक़्त भी लोग बैठे हुए थे। मैंने पारो को इशारा किया और वो कुछ देर बाद उठ गई। 15-20 मिनट बाद तवक्कुफ़ के बाद मैं भी राहदारी में आ गया और जैसे ही मौका मिला तेज़ी से पारो की निशात गाह में दाखिल हो गया। पारो ने पहले से दरवाज़ा खुला रखा था और मेरे पहुंचने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मोहन, वो बुरी तरह मुझ में समा गई और तुमने रात भर इंतज़ार कराया। रात को मौका नहीं मिला था और मैंने उसे मुकम्मल तौर पर अपने बाजों में छुपा लिया और उसका नाजुक सरापा उठाकर कबाब गाह के अंदर ले आया। आज मेरे पास पिस्तौल नहीं है, खाली हो गया होगा, वो बांकपन से बोली। खैर मेरे पास मौजूद है, अगर कहो तो शूट कर दूं। और मैंने उसका जुमला मुकम्मल कर दिया। मुझे ना, चलो तुम्हारे साथ ही से मौत भी कबूल है, वो शौकी से बोली। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम हमें और कितना मुतासर करोगे। मेरा ख्याल है कि अब तो मेरा दर्जा घट जाना चाहिए। तुमने बहुत तेज़ी दिखाई, वो मचल कर बोली, और तुमने एक ही रात में यहाँ वहाँ क्या जादू कर दिया। तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझसे तुम कुछ नहीं छुपा सकते। क्या तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हें दाद दे रही हूँ? वो मैंने के लहजे में बोली। तुमने मुझे एक और ही अंदाज से सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो क्या? और मैं कहना चाहता था इलाही खैर हो, मगर कहते कहते रुक गया। भगवान शरण में रखे, मैंने कहा, और मैं ये सोचती हूँ कि तुम्हें यहाँ से लेकर फ़ौरन निकल जाऊँ, वरना तुम कुछ दिन और यहाँ रहे तो राजेपुर में कोई ज़िंदा नहीं रहेगा। ये खुद गर्जी है या इंसान दोस्ती? मैंने हंसकर कहा। कुछ भी हो, बहरहाल अब तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। हम कहीं बहुत दूर निकल जाएंगे, हो सका तो मुल्क से बाहर चले जाएंगे। तुमने खूब सोच समझ लिया है, मैं मुस्कुराकर बोला। मैं इन दिनों यही सोचती रहती हूँ और मुझे खौफ है कि कहीं तुम मुझसे छिन ना जाओ, क्योंकि तुम बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हो। फिर भी मैं तुमसे आगे नहीं जा सकता। तुम्हारे हुस्न के सामने सब पानी है, सब धुआं, और जब तुम मेरे बारे में ऐसी बातें करती हो तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं सोया हुआ हूँ। वो मेरे सामने इस तरह बैठ गई जैसे आज ये तमाम फैसले कर लेगी। मोहन, मुझे खुद पर इत्मीनान है। कहीं मैं तुम्हें अपनी जन्म खींचने की तमाम खूबियाँ रखती हूँ। मैं सुनता रहा, मगर वक़्त बड़ी एतबार चीज़ है। पता नहीं कल क्या हो जाएगा, और उससे पहले कि मैं तुम पर अपनी मोहर लगाना चाहती हूँ। मोहर तो तुम लगा चुकी हो। तुम इस वक्त संजीदा नहीं हो, वो संजीदगी से बोली। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। क्या अब खबर नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो? पारो, और मैं तकिए पर सर रखते हुए उसे मुखातब किया। अभी कुछ किस्से और सुनाने हैं और मैं चीज़ें और दरमियान में छोड़ना पसंद नहीं करता। वो अपनी नशस्त बदल कर मेरे सरहाने आ बैठी और उसने तमक्कन से पूछा, लेकिन फिर तुम बुरी तरह इन्वॉल्व हो जाओगे। मैं इन्वॉल्व हो चुका हूँ, ये फ़रार का वक्त नहीं है। तुम जैसी ज़हीन लड़की ये बात क्यों नहीं समझती? मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि महाराजा साजिशों के गिरोह का सुराग लगाने में बेहद संजीदा हैं और वो नहीं चाहते कि अंग्रेज़ इस इंतशार से फ़ायदा उठाए। और अंग्रेज़ क्या सोच रहा है? अंग्रेज़ वही सोच रहा है जिसका सबूत उसने पूरे हिंदुस्तान में दिया है। पारो ने तेज़ी से जवाब दिया। और मुझे क्या सोचना चाहिए? खुद को अलहदा करके बताओ। मैं खुद को अलहदा कैसे कर सकती हूँ? वह नाराज़गी से बोली। और मैंने इस वहशतनाक माहौल में चंद ही साल गुजारे हैं। अगर तुम ना आते तो कुछ और साल गुजर जाते। अजीब बात यह है कि जो मशवरा तुमने मुझे दिया था, अब खुद तुम्हें उसकी ज़रूरत है। अंग्रेज़ कमांडर कर्नल हार्डिंग के मतलब क्या राय है? वो भी दूसरे अंग्रेज़ों से मुख्तलिफ नहीं। ठीक है, और मैंने उसे अपने पास दराज कर लिया। पारो, तुम हुस्न और जहानत का शिकार हो और मैं तुम्हें खुद से बहुत करीब समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम वो किताब हो जिसे मैंने तसनीफ़ किया है और तुम मेरी तख्लीक हो, और मुझे कुछ नहीं कहने दोगे। जब मुझे कल सुबह खबर मिली कि बीना रानी, वो मुझे तमाम वाक़या सुनाने लगी और वो कितनी बेचैन हो गई थी।
پھر وہ جگدیپ کے گھر لوگوں کی قیاس آرائیوں اور شہر کی سنسی کے متعلق باتیں کرتی رہی، اور اس کا خیال بھی یہی تھا کہ اب کچھ دنوں کے لیے امن ہو جائے گا، لیکن یہ عارضی امن ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم کوئی خاص خبر سناؤ گی، اور میں نے اس کی طویل داستان سننے کے بعد کہا، کیا اس سے میری اہمیت کم ہو جاتی ہے؟ ارے نہیں، تم بڑے چبھتے ہوئے سوال کرتی ہو۔ تمہاری اہمیت سے میں پوری طرح واقف ہوں اور اس لیے یہاں موجود ہوں۔ تم نے میری باتوں کا جواب نہیں دیا، اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ اعتبار میں تمہارے معاملے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ تو پھر اپنی انگلی میرے ہاتھ میں دے دو۔ یہ لو، اور میں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے میری انگلی چوم لی اور میں اس کے پاس بہت دیر تک رہا۔ وہ مجھے اپنی ذہانت سے متاثر کرتی رہی اور اس کا انداز سب سے مختلف تھا، شائستہ، تیز، بلیغ، اور میں اٹھنے لگا تو وہ پس مردہ سی ہو گئی۔ اب مجھے تنہائی محسوس ہوتی ہے، وہ دروازے پر آ کر کہنے لگی۔ اپنے آپ کو مصروف رکھو اور ابھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ تم میرے لیے بہت قیمتی معلومات جمع کر سکتی ہو۔ اور میں نے اس کا رخسار سونگھتے ہوئے کہا، اور جس میں اس کے حسن کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔